Hello dear class 6th, how are you? I hope so fine. Yes. Our today's topic is the relative pronoun from your grammatical portion. Okay. So today we will discuss about the relative pronoun. Okay. Yes. Firstly, we all know what is the pronoun. Pronoun is used in place of a noun. प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है? नाउन को जहाँ रिप्लेस कर दिया जाए वहां पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, प्रोनाउन वहां यूज होते हैं स्टूडेंट्स जहां पर हम कोई नाउन का रिपीटिशन नहीं कर सकते, जिसको रिपीट अगर हम नाउन का रिपीटिशन करते हैं किसी सेंटेंस में, सो वो सेंटेंस सही नहीं लगता सुनने में, साउंड इट डजंट साउंड्स गुड. ठीक है. फॉर एग्जांपल, just like that, I am, yeah, for example, Rahul is my best friend. Rahul is my best friend. Rahul is 15-year-old. So Rahul is my best friend. Rahul is 15-year-old. Rahul is studying in the school, whatever, in the school. Okay. So this is not sounds good कि हम एक ही नाम को बार-बार अगर उसका प्रोनाउंसिएशन करते जाएं तो बहुत सुनने में और देखा जाए तो देखने में भी ग्रामेटिकल पोर्शन के हिसाब से करेक्ट नहीं होता. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो हम इसको जो सेकंड से राहुल आता है, फर्स्ट सब्जेक्टिव केस के बाद में जो सेकंड राहुल है, उसको हम प्रोनाउन से चेंज कर देते हैं. कैसे चेंज करते हैं? राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड. He is 15-year-old. Okay, dear students. So we can change this with the pronoun. So this is the general normal pronoun. Our today's topic is on the relative pronoun. So relative pronoun में हम इसको कैसे change कर सकते हैं? सबसे पहले firstly we have to study about the relative pronoun. हमें ये पढ़ लेना चाहिए कि relative pronoun means क्या होता है. Students, relative pronoun को आप just as a connectors भी बोल सकते हो. Connectors क्या होते हैं? Connectors वो होते हैं जो पर्टिकुलर दो सेंटेंसेस को बीच में कनेक्ट करने के लिए रहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आप इस एग्जांपल पे थोड़ा सा ध्यान दें. सीमा इज 15-year-old गर्ल हु इज डूइंग द जॉब. सीमा एक 15 साल की लड़की है जो कि जॉब कर रही है. सो हु इज द कनेक्टर इन दिस सेंटेंस? ओके. Yes dear students. Now move on the definition. Definition पर चलते हैं. सबसे पहले definition को रीड थ्रू करते हैं. A pronoun which join two sentences and which is related to previous and either you can say it is an antecedent. You can which is related to previous either antecedent noun is called the relative pronoun. Students, what is the antecedent means here? Antecedents means होता है previous. आप antecedents भी लिख सकते हो या previous भी लिख सकते हैं, यानी जो पहले आए. A pronoun which joins two sentences, एक ऐसी pronoun जो दो sentences को जोड़ती हो, दो sentences को connect करती हो, and which is related to previous noun is called relative pronoun. और ये जो हमारी relative pronoun होता है, ये पिछली इससे पहले जो नाउन आती है, जैसे कि यहाँ पर सीमा, सीमा इज द नाउन, ये इस नाउन के साथ में कनेक्ट ऑलरेडी होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, सो नाउ मूव ऑन द एग्जांपल. हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ एग्जांपल. फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन. यस, द फर्स्ट वन सेज दैट सीमा इज 15-year-old गर्ल. सीमा इज डूइंग द जॉब. सो एक सेंटेंस में एक ही नाउन का दो बार प्रोनाउंसिएशन हो रहा है. सो दिस डजंट साउंड गुड. ओके. सो यहाँ पर देखिए, सीमा जो नाउन है, नाउन का हम एक सेंटेंस में दो बार यूज कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट गुड. सो हाउ वी कैन रिप्लेस दिस? वी कैन रिप्लेस बाय द कनेक्टर्स. ईदर यू कैन से दिस, वी कैन रिप्लेस बाय दिस द रिलेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, सीमा इज 15-year-old गर्ल who is doing the job. So this Seema is replaced with the who is the connector or relative pronoun. Okay dear students.
Understand? Here we have studied the definition and the example. Yes, take a screenshot of this. Yes, dear students, let's take another examples. ठीक है, कुछ और examples के through हम इनको study करते हैं. Yes, the first example is that this is the camera. This is the camera which I have recently bought. This is the camera which I have recently bought. कि यह वो कैमरा है जिसे मैंने recently खरीदा है. Okay. So which what is the connector in this sentence? Which is the connector in this sentence? Yes. In the relative pronoun we have relative pronoun में जब हम study करते हैं, when we study the relative pronoun, then there are always almostly 2 to 3 type of clauses. Either 2 clause तो आपके इसमें होते ही होते हैं. ठीक है, कम से कम आपको 2 clauses या आप समझ सकते हैं 2 sentences आपको दिए जाएंगे, जिन 2 sentences को कनेक्ट करने के लिए आप बीच में connectors या जिसे हम relative pronoun कहते हैं आप उनको कनेक्ट करते हैं. ठीक है. So first this sentence अगर इसकी बात करें, in this sentence there is the this is the first clause and this is the second clause. Okay, and which is the connector between 2 clauses. Okay, so now move on the second type of sentence. Example, the man who stole your purse has been arrested. Okay, ये वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा पर्स चुराया है वह अरेस्टेड, वह पकड़ा गया. So first है the man. ठीक है, stole your purse has been arrested. पहला है the man stole your purse, who has the man, first this the man and the second one is stole your purse has been arrested, कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा पर्स चुराया वह पकड़ा गया. So connectors in this sentence which is who. So who is the connector? Yes. And the third example is this is the boy whose purse you stole. So the first clause is this is the boy. यहाँ पर उसको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन दिया गया है कि this is the boy, यह वो व्यक्ति है जिसका पर्स you stole, यानी जिसका पर्स तुमने चुराया है. तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? तीन व्यक्ति है. पहला जो जिसका वो लड़का है जो जिसका पर्स चुराया गया, सेकंड वन जिसने चुराया, थर्ड वन हु इज द टेलिंग कि दिस इज द पर्सन whose purse you stole, जिसका पर्स तुमने चुराया है. Okay dear students, yes, the connector in this sentence which is whose. Yes, now move on the use of the relative pronoun. Either we can say that the types of the relative pronoun. Okay. First one is who. Students, who means हम सब जानते हैं who मतलब क्या होता है. who means हिंदी में होता है कौन, यानी कौन या जिसने. ठीक है, अगर हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो हम उसमें क्या बोलेंगे, या तो कौन या जिसने. who means कौन. When 2 sentences are joined with the who, then it is in place of subject of second clause or sentence. कि अगर आप किसी सेंटेंस के 2 क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं और बीच में से उस नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप उसको कहाँ लगाएंगे, who से के साथ अगर आपको जोड़ना है then it is in place of, यानी कि वह किसकी जगह आएगा, in place of subject of the second clause. मतलब जो आपका सब्जेक्ट होता है सेकंड क्लॉज का उसको रिप्लेस करके आप who का यूज करेंगे. जैसे this example, let's take an example. This is the camera which I have recently bought. कि यह वो कैमरा है जिसे मैंने रिसेंटली में खरीदा है. अगर ये which नहीं होता तो अपना सेंटेंस क्या होता, this is the camera I have recently bought.
सो कैमरा वर्ड 2 बार आ रहा है, दैट डजंट साउंड गुड, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहां पर जो सेकंड वाले में जो कैमरा, यहां तक हमारा एक सेंटेंस हो गया, इसके बाद वाला हमारा अदर सेंटेंस है। तो अदर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, कैमरा हमारा सब्जेक्ट है। सो ये जो कैमरा आ रहा है, इस कैमरा का जो ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो हमने इस कैमरा को रिप्लेस करके विच को यहाँ पर प्लेस कर दिया। ओके, फर्स्ट थिंग दिस, सेकंड वन इज दिस एंड द थर्ड वन इज दिस। सेकंड रूल, इट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। ये आपको ध्यान रखना है कि यह केवल पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए ही यूज होगा। ओके, थर्ड वन इज हु इज पुट जस्ट आफ्टर द who is put just after the antecedent. What is the antecedent? कि जो आपका प्रीवियस में जो नाउन आ रहा था उसके बाद जो आएगा वो ही आपका एंटीसीडेंट होता है। यानी प्रीवियस नाउन का रिलेशन जिस सेकंड वाले सेंटेंस के साथ जोड़ा जाएगा सब्जेक्ट के साथ, वो आपका एंटीसीडेंट होगा। तो हु इज पुट जस्ट आफ्टर द एंटीसीडेंट, यहाँ पर भी हमने आई से पहले ही को जो हमारा कनेक्टर्स है, सॉरी हु वाला एग्जांपल ये रहा, द मैन हु स्टोल योर पर्स, तो ये हमने हु यहाँ पर लगाया। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस लेट्स टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके, यस आज टुडे वी विल डू ओनली यहाँ तक ही हम करेंगे, ओनली राइट अप हियर। ओके, आगे का वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो मेनली कैरेक्टर्स आपके होते हैं जैसे हु, whom, which वगैरह वगैरह, तो ये सारे जो है हम सारे अगली क्लासेस में देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स।